Hello everyone, welcome to today's session. Today's topic is outdoor catering. So in today's session we are going to discuss a few points. First of all, introduction. So who could be outdoor caterers? And second, licensing part हम लोग डिस्कस करेंगे. So what license do we required? On-site facilities क्या होनी चाहिए? Employees का skill set क्या होना चाहिए? कितने employee होनी चाहिए किस particular business के लिए? We'll discuss about equipments, preparation, transportation, service equipments, establishing suppliers. We'll discuss about food purchase, storage handling. We'll discuss about spatial effects. What are the what are the things that you should apply in your outdoor catering to get it different than others. We will discuss that is pricing, how you finding the cost, how you make the profit, how you keep your cost in control. Pricing techniques हम लोग discuss करेंगे. We'll discuss the menu balancing, and after that we'll discuss how to sell your product. For example, what is the telephonic techniques, price quotation क्या होना चाहिए, booking, clients मीटिंग रिव्यू क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर अगर मीटिंग को आपको किसी को अप्रोच करना है तो किस तरीके का आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रोच होना चाहिए. सो मोर और लेस मार्केटिंग सेगमेंट जो है इसका थोड़ा सा हम लोग उस मार्केटिंग पार्ट भी वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन. सो गाइज लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. सो यस, सो व्हाट इज आउटडोर कैटरिंग? उसका और एक अदर दूसरा नाम भी है, दैट इज ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग, राइट. सो एज द नेम सजेस्ट, जहाँ पे रेस्टोरेंट में किसी कैटरिंग नहीं हो रही है और किसी और जगह पे अगर उस कैटरिंग को सर्व किया जा रहा है, फूड को सर्व किया जा रहा है, तो उसे आउटडोर कैटरिंग कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज आउटडोर कैटरिंग. फर्स्ट पॉइंट, सो ऑफ प्रीमाइसेस कैटरिंग is serve food at a location away from the caterer's food production facility. ओके, जहाँ पे भी कैटरर्स की फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहाँ से किसी दूसरे लोकेशन पे अगर खाना सर्व हो रहा है. एंड वन एग्जांपल ऑफ फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी इज फ्री स्टैंडिंग, which is a kitchen facility used exclusively for the preparation of food to be served at other location. Other example of food facility include are not limited to the hotel, restaurant and club kitchens. In most cases, there is no existing kitchen facility at the location where the food is served. So, caterers provide single event food services, but all caterers are created equally. They generally fall into three basic categories. One is the categories what we are going to discuss, that as partly food caterers supply only the food for event, that are the and they dropped off cold foods and leave the last minute preparation plus services into cleanup area. Then hot buffet caterers आते हैं, उसके बाद में full service caterers आते हैं and off premises caterings आती है. सो जो ऑफ प्रीमाइसेस कैटरिंग जो होती है या आउटडोर कैटरिंग जो होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन की फैसिलिटीज से दूर एज पर टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट किसी रिमोट एरिया में कोई अगर खाना सर्व हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड आउटडोर कैटरिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट लाइसेंस व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर आउटडोर कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट. सो अंडर द FSSAI, इस बॉडी के अंडर में आपको एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती है लाइसेंस की. FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड एंड सेफ्टी सैनिटाइजेशन. Yes, so let's begin with the license part. That is FSSAI. That stands for Food Safety and Standards Association of India. इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, जो कि सेंट्रलाइज बॉडी है और जो फूड के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनको लाइसेंसिंग्स में आपको सबसे पहले इस सेंट्रलाइज बॉडी में रजिस्टर होना पड़ता है. एंड देन आफ्टर डिफरेंट लाइसेंस जो होते हैं वो लाइसेंस आपको लेने होते हैं. सो दैट इज अ फूड के जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन जो है उनके अंडर में टू ऑपरेट एनी फूड एस्टेब्लिशमेंट लाइक कैटरिंग और एनी फूड लाइसेंस इज नेसेसरी टू हैव लाइसेंस, a valid proper license. A penalty will be charged up to 2 lakh rupees in general requirement, but it may vary, depends upon what business you are doing there.
So, inspecting the facility of state compliance, ensuring staff has a proper training for food certification is often mandatory as well. सो स्टाफ जो भी कैटरिंग कंपनी में काम करता है दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड उनको खाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको हाइजीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको सेफ्टी असेसमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. जो भी शेफ्स वहाँ पे काम कर रहे दे आर वेल ट्रेन, दे शुड नो द व्हाट इज द फूड हैंडल, व्हाट इज द क्रॉस कंटेमिनेशन. ये सारे काफ़ी सारे उसमें लाइसेंस होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस लाइसेंस. अगर हम लोग डिफरेंट लाइसेंस के बारे में बात करें, सो अदर परमिट्स एंड लाइसेंस मे बी रिक्वायर्ड बाय लोकल states wise. It depends upon the local state agencies. Other license like quality assurance license, health assurance, it also very important to the business to obtain because it satisfied the customer mentally when they required the services. So what are the license we required now? Let's start with that list first. Food and safety license, the very first license which you required, and this license you have to renew. Second license which required, that is health and trade license. Third license which required, that is eating house license. अगर आप रेस्टोरेंट्स के बाहर अगर आप सर्विसेज में खाना सर्व कर रहे हो तो जहाँ पे भी आपका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे भी आपका किचन है, वहाँ पे ईटिंग हाउस लाइसेंस लगता है. इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट. उसके बाद में आपको साइनेज लाइसेंस की ज़रूरत होती है. उसके बाद में आपको अगर आउटडोर कैटरिंग के लिए आप जा रहे हो एंड आप वहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर वन डे के लिए आपको म्यूज़िक की भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है. लाइफ लाइसेंसेस जो होते हैं वो भी आपको लेने की ज़रूरत होती है. इंश्योरेंस जो है जैसे कि पब्लिक लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी, फायर पॉलिसी, बिल्डिंग एंड एसेट्स, इसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी होती है. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की लाइसेंस की जरूरत होती है. नॉमिनेशन अंडर PFA एक्ट 1954 सेक्शन 17(2) एंड रूल 12B एज द रूल्स 1955. ये सारे लाइसेंस के आपको सारे लाइसेंस की जरूरत होती है व्हेन यू वांट टू एस्टैब्लिश एनी कैटरिंग इंडस्ट्री और एनी रेस्टोरेंट्स. अगर आप रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करो, लेट मी ऐड ऑन द थिंग्स. अगर रेस्टोरेंट के बारे में बात करो, वहाँ पे अगर अल्कोहल सर्व हो रहा है तो अल्कोहल के लिए अलग से लाइसेंस होता है. सो कुछ रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया होते हैं जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया फॉर द कैटरिंग बिजनेस लाइसेंस और फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट. सो द फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस इज अ लाइसेंस विच इज ग्रांटेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Okay, so FSSAI, that is Food Safety Standard Authority of India, or that provides the business entity to carry the activities linked to any stage of processing, manufacturing, packaging, transportation, storage, distribution of food, catering services, import and include food services, sales of food or food ingredients. FSSAI food business license is necessary for catering business. According to the Food Safety and Standards Authority of India, it is a mandatory for the food business operators whose annual income is up to 12 lakh rupees to obtain a food registration certificate. So ये एक और लाइसेंस इसमें ऐड होता है अगर आपका 12 लाख रुपीस के ऊपर बिजनेस है तो. The certificate is easily obtained by the state authority or municipal authority can hire a consultant for FSSAI food license. So the following food business operator has to follow certain process to obtain the FSSAI catering business license. The application from Form A along with the photograph and essential documents is to be submitted registered authority with some fees, and then you will get the FSSAI license. So when we talk about this license part, उसके लिए कुछ जो कि मैंने अभी FSSAI के अंडर में जो लाइसेंस के बारे में हमने बात की, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कैटरिंग बिजनेस आपको अगर रजिस्टर करना है तो सबसे पहले which documents we will discuss those documents too. So first of all you need to have Form A and Form B. So Form A for basic FSSAI registration and Form B for state and central FSSAI के registration के लिए आपको दोनों फॉर्म्स की जरूरत होती है. फॉर्म A जो होता है वो बेसिक जो सेंट्रलाइज बॉडी बेसिक बॉडी है FSSAI की, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से होता है. और फॉर्म B के लिए आपको जो स्टेट वाइज आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है. ये दोनों फॉर्म आपने जो भी
ओनर है जिनके नाम पे ये बिजनेस है, उन्होंने साइन करके देने होते हैं। फिर उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगते हैं, देन पैन कार्ड ऑफ FBO, ओनर प्रॉपर्टीज और पार्टनर डायरेक्टर के लिए किसी का भी पैन कार्ड चलेगा। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रीमाइसेस, कि आपने अगर रेंट पे प्रीमाइसेस प्रोविस किया है या आपका खुद का है, जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है यूटिलिटी बिल के साथ में या वाटर बिल के साथ में या रेंट एग्रीमेंट के साथ में आपको उस पर्टिकुलर फाइल में लगाने पड़ती है। इफ़ यू हैव अ पार्टनरशिप देन आपको पार्टनरशिप डिड देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन ऑफ incorporation of article of association, that is AOA in case of company, the complete list of food items the unit will be processing, the complete FSMS, that is food safety management system, और जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है एप्लीकेबल फॉर FSSAI स्टेट और सेंट्रल फूड लाइसेंस ओनली। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिस्ट किए हैं, अभी जो डिस्कस किए हैं, दोज डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर फॉर टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन. So there are some requirements again which have to fulfill by the catering establishment. First is the operator should ensure that the location of their business should be free from external pollutants, right? तो एक्सटर्नल पोल्यूटेंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपका आउटडोर कैटरिंग का जो सेटअप है वहाँ पे आपके आउटडोर कैटरिंग का सेटअप नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देयर शुड बी प्रॉपर एंड एडिक्वेट स्टोर इन हाइजीन कंडीशंस दैट यू हैव टू शो ऑन देम. द कुकिंग मेथड शुड बी इंश्योर फ्रेश food which should be free from any contamination. The stalls or counter should be clean and hygienic. All the staff handling the food department should also maintain the personal hygiene. Only fresh food should be packed for delivering food packages, and the container used for cooking should be free from dust and other articles. So let's discuss what equipment do you require for outdoor catering. The basic understanding which everyone should have. It depends upon equipments you need. That depends upon the type of catering you plan or doing. The number of guests you are serving और आपका catering establishment है वो कितना बड़ा है और कहाँ पे उसका main जो footfall है, वो main जो उसका जो service area है वो कहाँ पे है, वो that is very important to understand. So the basic equipments है, तो उनके बारे में अगर बात करें तो आपको सबसे पहले आउटडोर कैटरिंग के लिए आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका खाना जो है वो एक हाफ ऑफ द प्रिपरेशन कहीं आपकी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे करने वाले हो, तो वहाँ से उसको ट्रैवल करके आप रिमोट एरिया में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपकी साइट है वहाँ पे आप उसको ट्रैवल करने वाले हो. तो सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेशंस की बहुत ज़रूरी होती है. अगेन रेफ्रिजरेशंस डिपेंड्स होते हैं कि आपका कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट कितना बड़ा है और किस लेवल पे काम करने वाला है. सो let's start with the equipment first. Knives, spatulas, roasting pans, depending upon the kind of cooking you are doing. So you are going to need lots of knife. You are going to need lots of cutters. Quality count when then you are trying to record this. After that, you will be needing pans, different pots. So there is no lot of debate around Teflon versus stainless steel. So it depends upon what you will prefer. And after that you need pans, lots of pans and lots of pots. अगर crockery, cutlery and glassware and serviettes के बारे में बात करें, so if you are doing the full service catering events, then you will not only need to prepare the food but also service too. तो आपका जो कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट है अगर आप उसका सर्विस में भी आप सिर्फ खाना बना रहे हो तो आपको उससे पर्टिकुलर रिलेटेड ही इक्विपमेंट्स की जरूरत रहेगी. अगर आप खाना सर्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट रहेगी. सो दैट इज कॉल्ड फुल सर्विस कैटरिंग इवेंट. इट मीन्स यू आर कुकिंग फूड एंड यू आर सर्विंग फूड टू. सो इफ यू आर डूइंग द फुल सर्विस कैटरिंग इवेंट्स यू विल not only need to prepare the food but serve it too. So when you are buying your crockery, cutlery and serviettes, you want to make sure that you can replenish your stocks when the inevitable breakages happen. A few too many chardonnays and guests will throw cautions and plates to the wind, and that is you have to replace it.
देन आफ्टर क्रॉकरी, कटलरी एंड सर्विसेज के बाद में मेन और एक आता है आपके सर्विस ट्रेस और स्टोरेज कंटेनर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपको. So you are going to need something to store your culinary and masterpieces, and then you are going to need something to serve them too. So you can hit the commercial kitchen stores or you can local supermarkets from where you can buy the things. Then आपको ब्रैड पैन आता है. सो ब्रैड पैन की आपको ज़रूरत इसलिए होती है कि बॉयल, स्टीमिंग, पोचिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, ये जितने भी कुकिंग टेक्निक्स होते हैं वो ब्रैड पैन के लिए आपको ज़रूरी होते हैं. कॉक टॉप्स एंड ओवंस की ज़रूरत होती है आपको. डिफरेंट ओवंस है, डिफरेंट कुक टॉप्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी. बेन मेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट वाइल यू आर वर्किंग इन होटल इंडस्ट्री और एनी कैटरिंग इंडस्ट्री. बेन मेरी इज़ मच रिक्वायर्ड क्योंकि nobody likes cold fish, right? So इसलिए Ben Mary will keep your food hot, or those catering events, or people will start to wonder if you really know what you're doing. If you are not serving the hot food, if you are serving, let's see, if you are outdoor as an outdoor caterer, you are serving the food somewhere in a very hilly area where there is windy and temperature is cold outside, and you are serving the cold fish, so nobody will like to have the cold fishes. So you need to have something which can keep the food warm, and Ben Mary helps. Refrigeration, obviously different refrigerations हैं. फूड को रेफ्रिजरेट करने के लिए आपको टाइम लगेगा. फूड को आपको डिफरेंट लेफ्ट ओवर होता है आपका, या हाफ कुक फूड्स जो होते हैं, नॉट हाफ कुक फूड्स बट लेफ्ट ओवर है, या हाफ कट फूड जो होते हैं, या आपका लेट्स से आप कुछ प्रिजर्व करना चाहते हो. सो यू नीड टू हैव रेफ्रिजरेशंस. ब्लेंडर्स एंड मिक्सर्स, थर्मोइक्स जो होता है, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड. So there are several dozen countertops appliance that is already crowding your kitchen, maybe finally come into their own, again depending on the amount of people you are catering. Your standard appliances may be well good enough for the job. They are not quality though. You are going to need to upgrade to some heavy duty versions. These are few of the least expensive items in the grand scheme of things, but make sure that if you are going to buying a new ones, you are investing in a quality. You need to have a good blenders, mixture and thermoix. When we discuss about after that, then you coffee machines or tea stations. So if you are planning to catering outside event, then you will need to keep the masses not only fed but hydrated. Coffee machines is a must, as the URLs for keeping water hot, and milk cold. You will need tea and coffee pots, cups, saucers and hot cold beverages. Then after plate stacker aata hai. Again, if you are catering to on-site events, you are going to need some extra equipments. If you are dishing out plates, food to hungry crowd, you are going to need to collect those plates too. So a plate stacker is handy little trolley you can use to collect your crockery and transport it to cleaning. Then one more and the last thing is dishwasher. So unless you have a fancy giving, you need to have a good dishwasher to avoid any sort of any sort of breakages, to avoid any sort of contaminations with the food. So the dishwasher is very important equipment while you are setting up our new catering business. So let's start. So these are the things which we discuss about the general catering establishment. And if you talk about Indian catering establishment, then you would be needing one more Indian item, that is tandoor. So tandoor जो होता है वो हर एक Indian outdoor catering में mandatory part है. Obviously tandoor is very famous and very popular in our cuisine parts. So tandoor की ज़रूरत होती है. Depends upon, again, आप 1000 को सर्व कर रहे हो, 3000, 5000, सो नंबर ऑफ तंदूर. चपाती मेकर्स जो होते हैं, चपाती मेकर्स की भी ज़रूरत होती है. एंड बड़ी बड़ी जो स्वीट्स के लिए हम डेजर्ट्स के लिए, जैसे कि जलेबी है, तो जलेबी के लिए एक फ्लैट कढ़ाई की ज़रूरत होती है. तो डिपेंड्स है कि किस क्यूजीन को आप सर्व कर रहे हो और किस पर्टिकुलर एरिया में सर्व कर रहे हो और किस पर्टिकुलर क्राउड को सर्व कर रहे हो. सो ये तीन चीज़ें जो होती है वो आपके इक्विपमेंट्स को मैटर करती है. So when we discuss about employee skill sets, so obviously there are two categories. One is service area and another one is kitchen area. अगर आप सर्विस एरिया में काम कर रहे हो तो you should have an understanding of basic understanding of food. खाने के लिए जो स्टाफ है
जो कि उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फूड कंटामिनेशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैटरिंग इंडस्ट्री में ये बेनिफिट है कि मेन्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, 80% मेन्यू जो होता है वो सेम होता है, तो दैट वेरी इजी टू फॉर यू टू कीप इन माइंड कि किस क्वालिटी का खाना सर्व हो रहा है, किस क्वालिटी का वहाँ पे फूड हम लोग सर्व कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर रीजन में सर्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आती है तब आपका जो स्किल सेट्स है वो डेवलप होता है। सो यस, खाने के बारे में फ्रंट ऑफ स्टाफ को बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि खाने का नॉलेज होना चाहिए, खाने का आइडिया होनी चाहिए। देन अगर खाने के बाद में और एक पॉइंट अगर कोई आता है तो दैट इज अगेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दे शुड फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो है, और वो तो ये रूल तो सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी अप्लाई होता है कि फ्रंट ऑफिस स्टाफ शुड बी गेस्ट फोकस होना चाहिए। एंड देन अगर आप देखोगे तो कैटरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आपको इट्स ऑलवेज अ न्यू एरिया, आपके लिए रेस्टोरेंट में काम करना डेली रूटीन में इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरी डे आपको हर एक नई जगह पे काम करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आपके अंदर वो एक what do you call this acceptance होना चाहिए that okay, you should be ready with the understanding of this is my area and this is where is the dishwasher, this is my main course pickup area, this is my starter pickup area. So you need to have a bit smart enough to understand the geography of that particular catering event destination. सो आप जब उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में देन यू विल अंडरस्टैंड जोग्राफिकली, सो यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस, और आपको आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आनी चाहिए। तो ये फ्रंट ऑफ हाउस में ये दो बेसिक चीज़ें होती है जो आपको होनी चाहिए। और अगेन इट्स अ लॉन्ग आवर शिफ्ट, सो फिजिकली एंड मेंटली बोथ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। The staff have to be very strong. It's a long hour shift, क्योंकि आउटडोर कैटरिंग्स हमेशा लेट नाइट्स तक चलती है, या लंच भी होते हैं तो लेट इवनिंग्स लंच उनके ख़त्म होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर शिफ्ट्स होते हैं ये। नाउ विल डिस्कस अबाउट द किचन पार्ट। किचन पार्ट की अगर बात करें तो शेफ्स जो होते हैं और जो कुक्स होते हैं उन्हें अगेन लोकेशन वाइज खुद को सेट करते आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप नया है, तो उतना पेशेंस होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर एरिया को आपका किचन में डेवलप करते आना चाहिए आपको उतनी ही, क्योंकि दैट इज़ अ जॉब ऑफ पेशेंस। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में और आउटडोर कैटरिंग में ये एक फ़र्क होता है, रेस्टोरेंट्स में आपका किचन सेट होता है और सेट किचन में काम करना बहुत आसान होता है, और आपको जहाँ पे अनसेट किचन है, जहाँ पे आपको नहीं पता है कि आपका फ्राइंग पैन आपने कहाँ रखना है, या आपका स्पैचुला कहाँ पे है, या आपका मसाला किट कहाँ पे, जो भी है, ये दो पर्टिकुलर चीज़ों में सेक्शंस में, so you have to be very calm and you have to be very patient while you're working in such a form of catering establishment. And again, you have to be very sound while you're working, because the resources what you are available, they definitely comparatively they are not that great enough to keep your food warm or something as comparatively the restaurant part. So you have to be very fast. You should take the decision, okay, this time you should start sending the food. ये शेफ का जजमेंट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलर वेदर में मैंने किस टाइम पे खाना बाहर निकालना चाहिए, किस टाइम पे खाने को रोक देना चाहिए, क्योंकि खाना देयर आर चांसेस कि खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, या देयर आर चांसेस आप ज़्यादा खाने को कुक करके रखते हो तो बिकॉज ऑफ आउटडोर देयर आर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो स्टाफ को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब मुझे रुकना है और कब मुझे चलना है, शेफ़ को स्पेशली। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है शेफ़ में, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद सर्विसेज। एंड जैसे मैंने कहा कि डिस्कस किया आपसे कि यस, अंडरस्टैंडिंग ये भी होनी चाहिए कि कब पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नई जगह पे आप एवरी सिंगल टाइम आप नई जगह पे सेटअप करते हो, नई जगह पे खाना बनाते हो, एवरी सिंगल टाइम आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो ये दो क्वालिटीज़ जो है, वन इज़ पेशेंस एंड वन इज़ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, एंड ये दो क्वालिटी शेफ्स के अंदर होनी चाहिए। फूड नॉलेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये एक कंपलसरी
पार्ट है, ये एक जॉब का पार्ट है। बट अगर कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट में आपको अगर कोई स्किल सेट्स को अर्न करना है तो ये स्किल सेट्स दैट शेफ्स और फ्रंट ऑफिस स्टाफ शुड अर्न such skill sets. So guys, today's session we discuss introduction of outdoor catering. After that we discuss license part and we discuss equipments. So in next session we will discuss that is supplier and storage, handling of food, and some special effects or how to promote your catering company. So till then, thank you and take care.